Hi, hello friends, how are you all? I am doing good and hope the same from you all. ఈరోజు మీ అందరికి ఒక మంచి వీడియో చూసేయండి మరి. ఇది కొంచెం పాత వీడియో అండి. దివాళీ కంటే ముందు తీసింది, కొంచెం లేట్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ దివాళీ ఫెస్ట్ నడుస్తుందని దుబాయ్కి బయలుదేరాము. 4 o'clock అలా బయలుదేరితే ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ దివాళీ వీకెండ్ అప్పుడు. సో రోడ్లు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయాయి. మాకు 20 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ టైం జర్నీ అయితే మాకు 2 hours 3 hours పట్టింది దగ్గర. సో కార్లోనే కూర్చొని బోర్ కొట్టేసింది అనమాట. సో రోడ్ పైన అంత ట్రాఫిక్ జామ్ అనమాట. దివాళీ షాపింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్లస్ వీకెండ్ కావడం వల్ల ఫుల్ ట్రాఫిక్. సో విసుగు వచ్చేసింది. వెనక్కి వెళ్దామంటే వెళ్ళడానికి లేదు, ముందుకు వెళ్దామంటే ఫుల్ ట్రాఫిక్ జాము. స్ట్రక్ అయిపోయాం రోడ్లో కూర్చొని. ఇంకా అది కాకుండా ఒక రోడ్డు మిస్ అయిపోయాము. మొత్తం ఎప్పుడు 20 yearsలో చూడలేను దుబాయ్ మొత్తం చూసామన్నమాట. సో ఇది దుబాయ్లో అల్సిఫ్ ఏరియాలో దివాళీ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది అంటే అక్కడ చూడడానికి వెళ్ళాం. సో ఇట్స్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ టైప్ లాగా అనమాట. సో సూఫీ నడుస్తుంది, చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ రాజస్థానీ ఫోక్ మ్యూజిక్ డ్రమ్స్ అవి రిసైడ్ చేస్తున్నారు. అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అన్నట్టుగా కూడా నేర్పిస్తున్నారు. దే ఆర్ ద బ్యాండ్ అనమాట, అక్కడ వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంట్రెస్టెడ్ పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇన్స్టెంట్గా కొంతమంది స్టేజ్ పైన పిలిచి వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారు. అది వీడియో చూడండి, చాలా బాగుంది. ఆ మ్యూజిక్ అది వింటుంటే ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది నేర్చుకోవాలని. ఆ మ్యూజిక్ వింటూ ఒకసారి చుట్టుపక్కలంతా వీడియో తీస్తే ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందంటే చాలా బాగుందండి. ఆ వాతావరణము, ఆ మ్యూజిక్ మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్తుందండి. చాలా బాగుంది. రాజస్థాన్ ట్రెడిషనల్ లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఎలా రెడీ అవుతారో పెద్ద మాస్కెట్స్ అక్కడ పెరేడ్ చేసేవండి, చూసారండి.
magical giant puppets. Giant. Thank you नथु जी, थैंक यू आपका पूरा ग्रुप आप आए और आपने हमारा फेस्टिवल नूर फेस्टिवल स्टैंडअप कमेडियन प्रोग्राम को ఉంది అని आपने क्या कहते हैं చెప్పేసరికి ज्यादा ఆగిపోయాం చూసి ఆనందించాం थैंक यू सो ఇప్పుడు ఆదిత్య देखो मैं కులశ్రేష్ఠ पीछे देख के बात करूंगा क्योंकि मुझे बोला गया कि आगे स्टैंडअप इंपॉर्टेंट कमेडियन लोग बैठे हुए कॉमेडी हैं చూసి ఎంజాయ్ చేశారు और मैं नहीं चाहता कि मैं यहीं से डिपोर्ट हो जाऊं, ठीक है? तो पीछे वाले लोगों को देखो, ऐसा मेरे बारे में ऐसा नहीं कि जिनने देखा हुआ वो जानते हैं और जिनने नहीं देखा हुआ वो कहते हैं ये है कौन। तो जिन लोगों ने देखा हुआ है कृपया करके थोड़ा सपोर्ट करना। हाय गाइस, वेलकम टू द शो। एक बार गिव इट अप फॉर योरसेल्व्स, एक बार गिव इट अप फॉर ओह व्हाट अ वाइब दुबई। आई लाइक दुबई सो मच। मतलब जब से मैंने पैसा कमाना चालू किया तब से। उसके पहले जब मैं आया तो 2 दिन 23 का पहाड़ा याद करने में ही रह गया। भाई दुबई अच्छा शहर है। मैं जब मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो थी वो दुबई की थी, ठीक है? पहली 2 साल पहले तो पहली इंटरनेशनल ट्रिप जब होती है तो आप बहुत सोच के आते हो ना कि इंटरनेशनल ट्रिप है भाई। तो मैं पूरा अपने दिमाग में प्रिपेयर होके आया था कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। फोन में गूगल ट्रांसलेट डाल लिया कि कोई दूसरी भाषा बोलेगा तो बात कर लूंगा। मैं यहाँ उतरा, एयरपोर्ट से निकला, एक आदमी कह रहा है सर कहाँ जाएंगे? मैंने कहा भे, मैं कहा तू हिंदी नहीं बोलेगा मुझसे, कुछ और बोल। वो कह रहा सर मैं तो दिल्ली का हूं। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? देसियों ने टेक ओवर कर लिया भाई, देसियों ने टेक ओवर कर लिया। तुम लोग अंग्रेजों को मैंने खट्टी डकारे लेते हुए देखा यहाँ पे। हाँ, देसियों का एक ही कॉन्सेप्ट है, कहीं भी जाओ तंदूर लगा दो बस। बटर नान जहां मिलने लगे वो शॉर्ट हो जाता है। कितने लोग लाइक हैव बीन इन दुबई फॉर लाइक मोर देन 10 years? कितने लोग बाग अभी आए पिछले 5-1 साल में? ये 10 years वाले इनका कट गया बहुत बुरा। इनको लग रहा था इंडिया से निकल जाएंगे, यहाँ आके समोसे की खुशबू आ रही फिर से 10 बट दुबई वालों से मेरा एक जो है एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ झूठ बोलना बंद करें कि दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन और दुबई मॉल ये दोनों एक जगह है। ये बिल्कुल भी एक जगह नहीं है। मैं दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन पे उतरा और मैंने चलना चालू किया और फिर मैं चलता ही गया। बीच में ढाबे आए, समुंदर आए, 2-3 बार मैं सड़क पे मूर्छित हो गया। कह रहा आएगा मॉल, आएगा, उम्मीद रखो आएगा। भाई इतनी दूर, कितने दूर मैं चले ही जा रहा हूँ। मॉल में घुसा अंदर, मैंने कहा अब पहुंच गया। मैंने कहा कह रहे अब 3 किलोमीटर और चलना है। मैं अपनी मम्मी को लेके आया पिछले साल, अभी 2 महीने पहले मैं मम्मी को लेके आया। देखो घर जितने भी लोग अब तो तुम लोग तो यहाँ आ ही गए हो। मैं इंडिया में बोलता हूँ कि किसी को भी अगर अपने पेरेंट्स को ले जाना है कहीं तो दुबई ले जाना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ आके ऐसा लगता है कि ये सारी बिल्डिंग मेरे लड़के की है, मेरे लड़के ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं मम्मी को लेके आया। मैं सबसे पहले बेसिक सब लोग जाते हैं बुर्ज खलीफा देखने, है ना? सबको बुर्ज साहब एक ही बार जाने का होता है वो, वैसे तो जनरली बुर्ज खलीफा वो सबसे ऊपर उनका वो है एट द टॉप, है ना? बैंक बैलेंस रॉक बॉटम। इतना महंगा, मेरा जो घर का किराया है 1 महीने का, उतने में 15 मिनट लिफ्ट में ऊपर ले गया मुझे। वो ऊपर जाके कप केक दे दिया है। मैं कहा स्टार्टर हो गया आगे, कह रहे यही है निकलो वापिस। और ऊपर से लाइट ही दिख रही है भाई दूर की। मैं कहा क्या मतलब, ठीक है और बात करते हैं। मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश में एक शहर है भोपाल, नाम को पता है तुम लोगों को? कोई है तो नहीं भोपाल से? यहाँ एनीबॉडी फ्रॉम भोपाल? बस नीचे करो हाथ प्लीज। मैं जिंदगी में मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कितना सक्सेसफुल हो जाऊँ कि भोपाल ही दिखने बंद हो जाए यार। भोपाल ही दिखना बंद ही नहीं हो रहा, दुबई में भी भोपालियों से मिलूं मैं। बट अलग अलग शहर अलग, मैं बता देता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में एक शहर है, अलग अलग शहर अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होते हैं। సో గుర్తుపట్టారా అండి? దిస్ ఇస్ ఆదిత్య కుల్శ్రేష్ఠ్, స్టాండప్ కమీడియన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. చాలా బాగా కామెడీ చేశాడండి, చూసేయండి మరి. क्लोज से तो अब वो जिंदगी में कुछ अगर अचीव कर जाए, तुमको तो भरोसा नहीं होता, तुमको बिल्कुल लगता रहता है कि कुछ तो स्कैम किया इसने। नहीं, इसको नोबेल प्राइज असली में तो नहीं मिला होगा, इसने स्पेलिंग चेंज करी है असली आदमी की। मेरे दोस्त है भाई, मेरा दोस्त बचपन का, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ बचपन से। वो बन गया यार सर्जन, डॉक्टर वाला, और मैं उसको इतना अच्छे से जानता हूँ कि अगर मेरे पेट पे तलवार लगी हो और मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा हूँ, मेरी आते वाते सब बाहर हैं और वो आ जाए ऑपरेशन करने, मैं आते समेट के चल दूंगा। नहीं ज्यादा नहीं लगी, बुरा बैंडेड लगा लूंगा मैं। नहीं करो। मर्दों की दोस्ती बेस्ड ही इस मोमेंट पे। जितने भी आदमी यहाँ पे हैं, जितने भी आदमी, तुम्हारी जिंदगी में एक तुम्हारा सबसे खास दोस्त होगा, सुख दुख का साथी,
तुम्हारी मदद करी होगी उसने, तुमको पता है तुम गोली खा सकते हो इस आदमी के लिए, लेकिन दिमाग में तुम्हारे यही चल रहा है जब भी तुम उसके साथ हो कि इसकी हल्की सी ऐसी तैसी हो जाए तो मजा आ जाए। मतलब हल्की सी हो जाए यार, मतलब पूरी ऐसी तैसी ना हो लेकिन थोड़ा तो मजा आ जाए। मतलब आपको लगता है इसका तो शेयर ड्रॉप हो जाएगा तरीके से। मर्दों की दोस्ती इसी बिना पे हो रही भाई। हम लोग 4 दोस्त कॉलेज में, चारों बैक बेंच बैठे हुए, 4 लड़के किसी काम नहीं आ रहे क्लास के सबसे अनप्रोडक्टिव, बदसूरत, बिना पढ़ने वाले लड़के 4 बैठे हुए बैक सीट पे और मजे ले रहे पूरी क्लास के। बाकी क्लास इसलिए हमसे बात नहीं करती क्योंकि उन्हें आती है घिन। हमको लगता है वो लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो लोग अनुकूल है बहुत ज्यादा। 4 लड़के बैठे हुए नाम, अच्छा सॉरी मेरे को लगा रोकने आ गए। कह रहा बस हो गई बात। 4 लड़के भाई कॉलेज में बैठे हुए, 4 लड़के चारों बैठे हुए, इंग्लिश आती नहीं, नंबर आएंगे नहीं, पैसे है नहीं, शक्ल है नहीं, फिर भी क्लास में सबसे किंग वाला एटीट्यूड हम चारों ने ले रखा है। अब क्लास में भाई अलग अलग बच्चे आते हैं, कुछ आते हैं, हमने जो है 5 बैठ के पीछे बैठ के सबका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। सेकंड ईयर का टाइम था, इंजीनियर्स इन द हाउस, पढ़ने आई होगी, तू भी पढ़ने आया, तू अपना काम कर, मत कर, तू एक बार नौकरी लग जाए फिर देखेंगे। ये सब बातें हमको बोलनी चाहिए थी। भदौरिया ने उसको बोला वो भी तुम्हें देखती है। मैं कहा 3 सेमेस्टर में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। कह रहा है मजा कैसे आएगा क्लास में। अब हमारे पूरे ग्रुप ने वो गांव वाले लड़के को चढ़ाना चालू कर दिया कि कैसे तुम दोनों की दोस्त जोड़ी बेस्ट होने वाली है। उसके रोज कान में डाल रहे हैं बात कि भाई देखो मेरे को तो लगता है तुम दोनों का प्यार अनंत काल तक चलेगा। तुम लोगों की जोड़ी इतनी बढ़िया है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। उसका A ग्रेड आता है, तुम्हारा D आता है, अपोजिट अट्रैक्ट। वो गाड़ी से कॉलेज आती है, तुम बस से आते हो, अपोजिट अट्रैक्ट। वो पेस्ट्री खाती है, तुम गुटखा खाते हो, अपोजिट अट्रैक्ट। उसके दिमाग में बात डालना। जिस दिन वो कॉलेज में आए, एक दिन छोड़ के आया, उसके कान में कह रहा क्या तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कल। कह रहा मुझसे क्यों नहीं पूछती यार, शर्मीली है थोड़ी, कोई बात नहीं। एक दिन मैं कॉलेज आया भाई, वो बंदे को घेर के खड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश का मैप रखा हुआ है सामने। उसको बता रहे, कह रहे ये देखो ये तुम्हारा गांव है, हाँ ये उसका गांव है, यहाँ बारात रुकवा लेंगे। प्लानिंग यहाँ तक जा चुकी है भाई। अब ये सेमेस्टर में चालू हुआ अगस्त में और करते करते दिसंबर आ गया। हमारे कॉलेज में बात हुई कि भाई क्रिसमस मनाने पूरा क्लास आधा बंक मार के जाएगी मॉल और वहाँ सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। हमने बोला भाई देख तेरा आज दिन है, आज प्रपोज कर दे, तो सबके पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर दे तो साफ बात हो जाएगी, बिल्कुल जो होगी साफ होगी। और हमने तो इतनी केमिस्ट्री तुम लोगों में देखी है कि हाँ ही होगा। उसकी हमने तैयारी करी भाई, सुबह से उसको तैयार करना चालू किया। उसके पापा 6,000 रुपये भेजते थे, ठीक है, पाकिस्तानी जितने लोग हैं 18,000, ठीक है। I had to do this. I'm sorry guys. मैं बहुत कंट्रोल करके रुका हुआ था। बट नहीं। पाकिस्तानी उसको जलील हम नहीं करेंगे। IMF कर रहा है काफी। नहीं वापिस आते। इससे पहले बस अरे हाँ गलत बात। अभी कल टेस्ट मैच हारे हम भी, बड़ा कर रहे थे वहाँ उनके टेस्ट मैच हारने पे। अरे रन नहीं बन रहे तुमसे, तो 46 पे आउट हो गए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ तो 6 तो उसके पापा गांव से भेजते थे 6,000 रुपए। हमने भदौरिया ने उसको 4,000 रुपए के ऑर्किड खरीदवा दिए। कह रहा भाई ऑर्किड चल रहे हैं आजकल। उसको प्रपोज करने से पहले फ्रूट फेशियल कराने भेज दिया उसको। पपीते मलवारा चेहरे पे दोपहर में 3 बजे उसको भेज दिया हमने तैयार करने। हमने कहा भाई तैयार होगी नहीं तुम? कह रहा हाँ तैयार है। मैंने कहा भाई माउथ फ्रेशनर खा लिया? कह रहे क्यों, गुटखा तो आज खाए नहीं है। मैंने कहा भाई गुटखा नहीं, तुम प्रपोज करोगे उसको? कह रही हाँ। कह रहा हाँ। मैं कहा तुम हाँ बोलेगी? कह रहा हाँ। मैं कहा तो फिर किस हो गई तुम लोगों की? कह रहा क्या? मैं कहा अबे होता है ऐसा, तुम तैयारी से रहो। मैं ठीक साहब। अब शाम को हम लोग पूरे सब लोग बैठे हुए हैं, 50 लोगों की गैंग देख रही है। वो लड़की टॉपर बंदी क्रिसमस ट्री के आगे फोटो खिंचा रही है, जिसको मालूम नहीं है पिछले 3 महीने से बैक बेंच पे चल के रहा है। उसको मालूम नहीं है उसका लहंगा सिलेक्ट हो चुका है। उसको पता नहीं है कि यहाँ डिबेटें चली 3-3 घंटे की दुल्हन की एंट्री दिनशगनादा पे होगी या डोला पे होगी। वो अपनी फोटो खिंचा रही है, उसको मालूम नहीं है। अपने भाई पहुंच गया पीछे से कॉन्फिडेंस में, उसको कह रहा है प्रपोज कैसे कर रहा है? कह रहा है सुनो, हम तुम्हें दिन भर देखते हैं, हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो लड़की ऐसे फोटो खिंचा रही थी, कह रही हम नहीं बनना चाहते। भाई को तैयारी नहीं थी इस आंसर की, वो तो माउस फ्रेशनर खा के गया था।
वो सीधे घूमा वापस आ गया, कह रहा अरे। फिर वो लड़के का क्लास में बहुत मजाक उड़ा। बाकी 10 दिन से चला रहा, वो खजाना कहाँ है जो ढूंढ में आए थे, हमने कहाँ से निकल गए यहाँ पे। वैसे तो ये लास्ट जोक हुआ था, अगर तुम लोग हंस देते तो। चलो थोड़ा और कोशिश करता हूँ, नहीं बट जनरली हो गया। Thank you so much. Good night. My name is Aditya Kulshrestha. Good night. Ladies and gentlemen, Aditya Kulshrestha. Can I please request Astrid to come on stage? She represents NPCI International Payments Limited, our gold sponsor. Please come on stage and finish. దట్ వాజ్ ఆదిత్య కుల్శ్రేష్ఠ స్టాండప్ కమీడియన్. చాలా బాగా జోక్స్ వేసాడండి. చాలా కొంచెంసేపు బాగా నవ్వుకున్నాము. తర్వాత మళ్ళీ బెంగళూరు నుంచి మ్యూజిక్ బ్యాండ్ వచ్చింది, వాళ్ళు మ్యూజిక్ చేశారు స్వరాత్మ అని. చూస్తే అందరు ఫారినర్స్ లాగే ఉన్నారు కానీ ఇండియన్ ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా బ్యాండ్ అన్నమాట, చాలా బాగా చేశారండి. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటానండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ద ఎండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రెషియస్ టైం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, టేక్ కేర్. మీ అందరికీ ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. తప్పకుండా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కమెంట్ కూడా చేసుకోండి. బాయ్, టేక్ కేర్.